Good evening, everyone. After so many technical glitches, difficulties, we are here in front of you. And there's a message amidst all this that probably everyone wanted things to happen, even when in the face of difficulties, things should happen. I believe that is the widespread thinking among the students. But unfortunately, class 10 board exams are cancelled. And while everyone thinks that kids must be very happy, very enthusiastic about the news, let's get first-hand information from the kids themselves. Right now, I have in front of me, you can see on the screen, there are lots of students and very bright kids. You would really love to talk with them, know their opinion about not only class 10 board exams, but about the life ahead. And then I have with me the ever ready person to guide students in the midst of any situation. Very helpful, very energetic, and true friend of students, who is a teacher, who is a colleague, Ankita Gupta ma'am. Thank you so much. Thank you so very much, sir. आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई शहरों में, कई इलाकों में लॉकडाउन है। सुबह से जो माहौल है वो थोड़ा बदला हुआ है, लोग घर पे फुर्सत में हैं। पिछले साल की तरह बढ़ते हुए केसेस के बीच में लोगों की टेंशन्स हैं, लेकिन बच्चों की टेंशन्स लगता है जैसे दूर हो गई हैं, क्योंकि बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं। एग्जाम में सब स्ट्रेस में रहते हैं, आज ये कुछ खिले हुए चेहरे मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा आदर्श त्यागी को। आदर्श, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने की न्यूज़ मिली? I was deeply shocked by by just hearing about it, but that was one of my biggest shock in my life till the age I am. So I was. I mean, some shocks are positive, some are negative. So how do you take that? Positive or negative one? Firstly, it was a negative shock, but after some time, I realized that this decision was a good one, so it turned into a positive one. So, Gargi, who broke the news at your home that now the exams are over before they could start? Yeah, so my dad told me that boards were cancelled, and me and my parents, we were all very disappointed from the news, because I had been preparing for so long now, and it was just sad for me. For you it was sad, and how was it for your parents? They were also not very happy with the news, because they knew that I had been working very hard, and they wanted to see me see what I could do, and they wanted to see me happy. Oh, so moving to Manya Garg now. So Manya, looking very relaxed and happy. How was the breaking of the news in your home? So on hearing about the cancellation, I did do a little happy dance, but then reality struck and we realized that all of our years' hard work had gone in vain. But nevertheless, knowledge never goes waste. So we had mixed reactions at my house, because my parents did realize the current situation, while at the same time they had seen me work hard throughout the year. So it was a mixed reaction, like most of them. But yeah, knowledge never goes waste. So that is the prime thing to be taken into consideration. So disappointed or happy? What's the feeling right now? It is towards disappointment. Okay. Moving over to Masharib, the cool guy present with us. What was the reaction? His reaction was not at all, devastation. It was something I would never expect, Boards were cancelled. We were studied so much throughout the year, but now it's all about to end, really not happy, and it's partially actually. So not great about it. Just a final reaction. If I summarize it with just one word, wow or damn it. It's a point between both. Okay. It's a point between both, yeah. You are being diplomatic in the very beginning. Srishti, looking very happy. So you must be very happy after the news broke. Is that the case? My brother gave me this news and he was like, "Tere exams cancel ho gaye." And I was like,
ऐसा ना मेरे साथ ऐसे मजाक मत करा कर, मुझे पता है ये नहीं होने वाला है। एंड देन थोड़ी देर के बाद उसने मुझे दिखाया कि जो कैंसिल हो गया था, लाइक यस गॉन। मतलब आई वाज हैप्पी, इट वाजंट अ डेवास्टेशन फॉर मी, मैं खुश थी। इनफैक्ट मेरे फैमिली में मेरा भाई, क्योंकि मैं खुश थी तो उसको वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, और मेरे कजन्स भी खुश थे। मेरा जो कजन है वो वाज लाइक कि तू अच्छा खासा नहीं टारगेट नहीं सेट नहीं, करती सृष्टि सब एक बार कुछ। बताओ, क्या कभी कभी पहले सोचा था कि कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा कभी इमेजिन किया नहीं था? सर, मैंने सोचा था कि सबसे बुरा भी होगा तो पोस्टपोन हो जाएगा, मतलब कैंसिल इतना सोच रही थी हमारी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम करेगी, तो मैंने ये नहीं सोचा था। और मेरे पापा वाज लाइक कि अच्छा डिसीजन था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी रही थी कि लिया जा सके। तो मेरे फैमिली में सब बहुत कूल थे, मेरी मम्मा ही बस थोड़ा सा ऐसे तुम लोग आ गए 11th में, क्या ही करोगे आगे, इस वाला सिचुएशन में मैं खुश थी। नहीं, amidst all the criticism that government is getting, here is one positive news. The people who think that the government is doing a wonderful work, Shrishti has given an upvote to the government. बहुत अच्छा किया, इनके expectations के beyond, एग्जाम ही कैंसिल कर दिया, बहुत अच्छे। नक्षत्र, आपका क्या कहना है? स्टार्टिंग ऑफ द न्यूज क्या रहा था, क्या माहौल था घर पे? सर पापा ने बुलाया, मुझे न्यूज देख रहे थे कि एग्जाम्स कैंसिल हो गए। मैं खुश था कि जब बाद में पता चला कि इंटरनल असेसमेंट से हमारे मार्क्स पता चलेंगे तो शॉक हो गया कि स्कूल में प्री बोर्ड को ज्यादा सीरियसली लिए नहीं थे। अब इतनी मेहनत की एग्जाम्स के लिए, वो एग्जाम कैंसिल। देखिए, मतलब जो न्यूज बहुत सिंपल से लग रही है अंकिता मैम, उसके अंदर कितने डीपर लेयर्स हैं। अब जिनका स्कूल में इक्वेशन अच्छा नहीं है या प्री बोर्ड अच्छे नहीं हुए थे, उनके लिए तो डेफिनेटली डेवास्टेशन है, क्योंकि दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। बट डू यू थिंक अंकिता मैम दिस इट विल मैटर? क्योंकि अगर इंटरनल एग्जाम्स, इंटरनल के बेसिस पे अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं बच्चों के, तो इज इट गोइंग टू मैटर नाउ इन दिस सिचुएशन? योर माइक इज नॉट ऑन मैम, प्लीज। इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पर मार्क्स देना, तो बच्चे प्री बोर्ड्स के लिए, एज अभी नक्षत्र शेयर कर ही रहा था कि बच्चे प्री बोर्ड्स के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे, बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। तो आप इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पर जब उन्हें मार्कशीट उनकी पकड़ाओगे तो शायद खिले हुए चेहरे बुझ जाएंगे। और फर्क क्या पड़ेगा इसका, तो मतलब इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर जो मार्कशीट्स बनती हैं, सर आई एम सो सॉरी टू स्टेट दैट, कि कितने ही लोग उस पर बिलीव करते हैं। तो इस बैच के लिए ये अच्छा सा नहीं रहेगा कि इंटरनल असेसमेंट्स पर उनको असेस किया गया, टू बी वेरी। हाँ ट्रू, ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे शायद जो फेयर जजमेंट है वो नहीं हो पाएगा। एंड नो डाउट इट्स अ बैड सिचुएशन, बट we didn't have any alternative probably. Or do you think that there was an alternative, Manya? So there could have been an alternative if the decision was taken a little earlier, because the time it was taken, they've taken it in a very hurried manner. If it had it been 2 months ago, 1 month ago, they could have thought of different alternatives and they could have executed them well. But currently, what apart from like cancellation of exam, what do you think would have been a better decision? Sir, I am pretty sure most schools conducted pre-boards. In fact, some conducted 2 or 3 pre-boards. So had the decision been earlier, we would have prepared well for our pre-boards, and probably the marks of pre-boards would have gone for further result. They can always say that they were also not aware that it would be there with such a sudden spike in the cases. So what other situation do you think, what other better decision could have been? So honestly, no better decision could have been taken within a span of 15 days. Boards were too close to take a different decision, to give children a different, it would have been a setback for us, honestly. So the decision was rightly taken because it was just 15 days left for boards. And what do you think, Gargi? Manya has given a thumbs up that there was no other alternative apart from cancelling it. What do you think? I think that the timing of the decision was not right. First of all, the decision could have been made a little earlier. Like our date sheet of 10th class was announced in December, so they could have easily predicted by then that there would be a peak in April, May. So I think it was not the right decision, first of all, to schedule the boards for May itself, and then they could have maybe scheduled the boards a little earlier, like in March or a little later, so as to avoid this What kind in of this situation, I believe
you have pretty good skills to come in government in later on in your career, because you are pretty analytical in things. But don't you think that postponement would have been a better option for people like you who felt devastated? Sir, I think that again that not everyone would have been happy with the postponement of boards also. So I think there should have been an option that students who are willing to give the boards in these conditions as well, or after some time, they should have an option that they can give them later, while other students who think that they just don't want to, they could sit out, or they could be judged on other basis. Nakshatra, Whatever. what do you think? Do you agree with Gargi? She's saying that option could have been given to students who want to appear. Nakshatra, can you hear me? No, sir. So, am I audible, Nakshatra? Yes, sir. So, what do you think about Gargi's opinion, that she thinks that students could have been given an option, those who want to appear? सर फिर 11th के लिए हमारा टाइम कम पड़ जाता, अभी भी बहुत लेट स्टार्ट होगा सेशन हमारा 11th का, और जिन बच्चों ने वो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो नक्षत्र ने कहा है कि भाई क्लास 11th के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके लिए समय कम पड़ जाता अगर बोर्ड एग्जाम डिले होते। हाँ, आप कुछ कह रहे थे नक्षत्र? सर अभी अब KBB आया है 11th में, उसके लिए प्रॉब्लम होती है, अभी हमें इतना टाइम हमारा वैसे ही निकल गया है। ट्रू, काफी सारे एग्जाम्स हैं क्लास 11 के जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं हमसे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि एक KBP एग्जाम है और ऐसे कई एग्जाम्स हैं ओलंपियाड्स वगैरह के जो क्लास 11 के एंड में होते हैं। तो बच्चों को अगर बोर्ड एग्जाम डिले किया जाता तो और परेशानी हो सकती थी। आपको क्या लगता है आदर्श, इस सिचुएशन में क्या और कोई बेटर डिसीजन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? सिचुएशन तो देखिए क्रिटिकल है, आपको पता है आज JEE में जो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस का, आपको पता होगा, उसको भी पोस्टपोन करने का ऑर्डर आ गया है, आज ही आया है सुबह। तो ऐसी सिचुएशन में होना तो था ही, लेकिन क्या कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग आदर्श? No, sir. If the exams were to be postponed, might after 2 or 3 months. I mean, the date sheet might be released after 2 or 3 months. So the same condition might happen. Might the peak remains. The situation of Corona in this present time might be the same. You want to say that months. you want to say that if it would have been postponed to 2-3 months later, and again the same situation is there, it could have been a bigger mental trauma for students, right? Yes, sir. And so, moreover, the time for the 11th class would have been shorter. So, and that's the main reason that canceling the board exam is more preferable. So you are overall happy with the decision? Yes, sir, partially. Okay. Mashare, what do you think? Could there have been a better decision? Actually, I don't think so, because हम और ट्रॉमेटाइज हो रहे थे अगर एग्जाम ज्यादा और जाते हैं ना, क्योंकि अभी हमें और टाइम मिला था, 3 महीने और पोस्टपोन हुए थे, अब और पोस्टपोन हो रहे थे और ज्यादा ट्रॉमेटाइज होते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग बोर्ड एग्जाम्स आर कैंसिल्ड, यू नो, इट्स राइट। हाँ, कहीं ना कहीं अंकिता मैम हमें भी देखना पड़ेगा कि बच्चे जन लोगों का जनरली बोर्ड एग्जाम मार्च में होने वाला था, वो ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया था, मई में हो गया था। अगर फर्दर स्ट्रेच करने पे शायद ये एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा हो सकता था बच्चों के लिए। नहीं, डेफिनेटली तो ये और भी ज्यादा डिले करना तो शायद इतना फ्रूटफुल चीज नहीं थी। हाउएवर डिले करने की जगह जैसे कि बात है कि आप उसको डिले कर रहे हो या आप उसको पहले करा रहे हो, रादर देन दैट, लेकिन अगर बच्चों को ये थोड़ा सा भी पहले से मालूम होता कि ठीक है, दैट देयर माइट बी समथिंग लाइक कि मई में जो एग्जाम है, अगर कुछ ऐसा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, इस तरह से कोई भी रेगुलेशन आता कि भाई अगर मई के एग्जाम किसी भी वजह से कोई सेकंड पीक आता है, नहीं हो पाएंगे, तो जो पीछे बच्चे प्री बोर्ड्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उन प्री बोर्ड्स के लिए बच्चे ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होते और शायद इंटरनल असेसमेंट से वो ज्यादा सेटिस्फाइड होते तब। पर यही मेरा कहना है कि अगर बच्चों को हम बताते, हमें या पेरेंट्स को या बच्चों को या शायद गवर्नमेंट को भी हमारी ये वाली बात शायद पता नहीं, मुझे लगता है शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को भी हम शायद ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सृष्टि वांट्स टू ऐड समथिंग। सृष्टि?
Sir, I'd say that I contradict the points. So because क्योंकि something which was very difficult to predict even by the WHO, हमारी गवर्नमेंट में से predict नहीं कर पाई. ये कहीं ना कहीं हमारे past experiences, अगर हम influenza pandemic की बात करें तो उसमें भी second wave आई थी. Second wave ज्यादा deadly थी. First wave में 5,000 deaths ही थे. Second wave में 25,000 deaths peak था. तो वो past experiences थे हमारे. बट और ये भी बात भी कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल थी क्योंकि यूके में भी सेकेंड वेव आई जिसकी वजह से लॉकडाउन इम्पोज करना पड़ा पिछले 3 महीनों से. सो ये सब चीजें थी. True, I agree. I mean, the biggest concern for everyone in this country is your health. So obviously, Yes, sir. people are more worried about your health than your academics. That is why this decision sounds safe. It's not risky, it's safe that you are at your home, safe as the cases are increasing and hospitals are full and probably beds are not available in this tragic situations. It's we need to think, ma'am, from another point of view also. कि सपोज करिए कोई बच्चा है, उसके घर में या नोन में फैमिली में किसी को कोविड है, तो बच्चे तो इतने सेंसिटिव होते हैं. क्या आप लोगों में से किसी का ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि हमें सुनने में आया कि कोविड पॉजिटिव हो गया हमारे रिलेटिव या हमारे नोन में, तो उसका तो काफी इम्पैक्ट हो सकता है, बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं. क्या बच्चे आप में से किसी का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है रिसेंट पास्ट में? एनीवन? No, nobody So had this. it isn't just about our family members getting positive, it's about us too. What if one of us was positive during May? It would have taken a toll on our board exams. That would have been traumatizing. एक पूरे साल की मेहनत हमारी बेकार चली जाती. Because it is not one's fault that they turn out to be positive in, say, May or mid-June. That would have been amazingly sad for the kids. True. मैम आपका क्या कहना है अंकिता मैम? ये जो एक एस्पेक्ट है, एक इमोशनल मतलब काफी स्ट्रेन हो सकता है बच्चों के ऊपर. तो ये एक ये बात थोड़ी सी मुझे कम समझ में आती है कि हम यहाँ पर ये तो कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं हमारे बचे रहें, एग्जाम कैंसिल करते हैं हम, लेकिन जब हम संडे को कर्फ्यू लगाते हैं और रेस्ट ऑफ द डेज बाकी के बिजनेस और एंटरप्राइज चलते हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए जाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, जहां पर सबसे ज्यादा फॉलो हो सकते हैं नॉर्म्स, तो ये बच्चे उन फैमिलीज से हैं जहां पर उनके पेरेंट्स बाहर जाते हैं, काम करते हैं, जब वो आते हैं aren't they prone then? We are talking about the health, तो हेल्थ की सारी पढ़ाई से ही जाएगी. नहीं, ट्रू, डेफिनेटली मैं आप जो बात है उससे सहमत हूँ, क्योंकि एक अदर एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट को और मीडिया को भी समझना चाहिए. आज जो ये डिस्कशन हो रहा है इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जिसको शायद गवर्नमेंट ने और मीडिया ने और सभी डिसीजन मेकर्स ने दरकिनार कर दिया. जैसे मैम कह रही थी, लास्ट ईयर का अगर मैं आपको रिकॉर्ड्स बताऊं बच्चों, तो लास्ट ईयर सितंबर में जेईई मेन का जब एग्जाम हुआ तो सितंबर में आपको याद होगा दैट वाज अ पीक. द पीक केसेस वर इन सितंबर. The exam was scheduled in April. It was postponed to July. July, the cases were higher. The exam were again postponed to September. The cases were highest. And then the exams were held because there was no other option. So that is true that kids who are preparing for board exams, most of them are disciplined. They're going to sit in an exam for 3 hours. They could have easily taken a hand sanitizer just as it happened last year. आप लोगों को पता होगा सितंबर अक्टूबर में IIT का भी एग्जाम हुआ था, नीट का भी हुआ था, और उस समय पीक पे थे केसेस. तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो डिसिप्लिन है ऑलरेडी. वो कोविड टाइम में स्कूल भी जाना शुरू हो गए थे ज़्यादातर जगह, तो दे नो हाउ टू फॉलो द प्रोटोकॉल. दे आर नॉट इलिटरेट, they are not unaware, they are highly aware. What do you want to say on this? Anyone who would like to add the point? I'd like to say something. Yeah. Sir, I believe that आप इतनी मेच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एक 18 ईयर्स से कम के बच्चे से. मतलब why are we kids, why are we considered adolescents and teenagers? We cannot really expect this much of maturity from each and every child in our country that वो 3-4 घंटा जितने घंटे भी वो एग्जामिनेशन सेंटर पे रहेगा, he's gonna maintain the social distancing, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगा, मास्क पहनेगा. और उसके अलावा सर हाइपोथेटिकली भी अगर लिया जाए कि अगर एक बच्चा भी कोविड लेकर आ जाता अगर एग्जाम्स होते, तो सर हमें ये भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए ना कि एक बच्चे के घर में उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसके अंकल आंट्स होते हैं, उसके एल्डर और यंगर सिबलिंग्स होते हैं. हमें जब अपनी लाइफ का नहीं पता, मतलब कोरोना कैन गेट वेरी बैड ऑन सम पर्सन
can be very easy on some other, because immunity पे depend करता है. Vaccination सबको हुआ नहीं है, सब age group के लिए available नहीं है, 45 से कम लोगों के लिए available ही नहीं है. तो हम ये बात तो हम अपनी life का खुद sure नहीं हो सकते. अगर हमें कोरोना हो जाए तो we gonna be living, हम उसका sure नहीं, तो फिर हम ये कैसे sure हो सकते हैं कि अगर हम कोरोना ले आते और कोई हमारी वजह से किसी की हमारे खिलाफ बनती है, I हमारी death हो agree to जाती. most of your points, and I definitely believe that those kids, 3 lakh kids who signed the petition for cancelling the board exams, and there was a massive campaign. You might have been one of the leaders, the way you are convinced about this. And I found your logics to be very convincing. And Gargi wants to add something. अगर मतलब बच्चों में इतनी अकल हो सकती है कि वो ट्विटर पे जाके पूरा दिन सिर्फ ट्वीट करने में और लोगों को ट्रोल करने में स्पेंड करें कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दो, और इतनी अवेयरनेस है कि हम मर जाएंगे, तो सर लोगों में इतनी अवेयरनेस. मुझे लगता है गार्गी वर्सेस Sir, सृष्टि it में is, चल रहा है. नहीं, Sir, सृष्टि, it is the thing. Sir. Sir, it is the thing that we are doing something on social media. So social media से तो कोरोना नहीं आता है ना. So how can we be very sure कि मतलब बच्चों में maturity आ सकती है? Take a poll. Who all are with Srishti? Just raise your hand. Who all agree? Okay, one vote is there for Srishti, and who all agree with Gargi? Okay, so it's almost equal vote. It's a tie. So there are 2 points, diverging points of view, and I can clearly sense that there is Gargi who wanted to give the exam, and she says that, okay, I was okay with it. I could have strictly followed the guidelines, and I am that mature. Okay. But there is another point of view which Srishti is presenting, that no, this was a big risk. It should have been avoided, and it is right that it has been avoided. And she has presented her points very strongly. Anyone would like to add to what the points, Manya? Yes, sir. So no matter how careful we are, there were about 1.4 crore children all over the country who would appear for board examination, and there were just 7,500 centers. It is not everyone might have followed protocol, but it is not practical enough. You know, when we enter the examination hall, you never know who's sitting beside you. You never know how the health of the person is. And no matter how careful we were, it was a huge, huge risk. And we weren't just risking ourselves, we were risking our families too. True. So it was a risk for at the community level that she wants to say. Yes. Sir, I would like to correct a piece of information. The highest number of board examination students up till this date have been 18 lakhs. So 1 crore is a large number. Let's not get into the facts and figures. I would like to next move on to the impact, because what has happened has happened. We cannot change it. Whether we are happy or unhappy, we have to accept it. That's a fact. So to all the students who are, unhappy, who are disappointed, I would definitely urge them to take it positively, think it otherwise, understand the concerns, because every decision has pluses and minuses, and we need to move ahead. So before we discuss what are the ways to move ahead, I would like to assess the impact. Ankita ma'am is an expert in this, and I would like her opinion, and then I will go to the kids. That what do you think would be the impact of cancellation of board exam on the academics as well as psyche of students? So impact of the cancellation of board exam can be huge, even though there were repercussions when it comes to the health of the person. हम ये सब कह सकते हैं कि ठीक है हम कोरोना लाएंगे etc. But then otherwise इसके repercussions तो ये आप पूरे साल हमने देखे. हमने पूरे साल online classes करी, और ये हम जानते हैं, आप और हम जानते हैं, who belongs to this fraternity, that उन online classes का output उतना नहीं निकल कर आता. तो ये बच्चे cancellation से पहले भी काफी कुछ bear कर चुके हैं. They have already bought that, and when they are heading towards class 11, are they actually really prepared for the competitions they are talking about? Have they been told enough? Was matlab this all online period was enough to impact cancellation का, और प्लस जो उन्होंने पीछे ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन मीडियम से ही पूरा पढ़ाई करा है मैक्सिमम, उसका बड़ा होगा, डेफिनेटली होगा. तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, थोड़े वो पीछे रह जाएंगे. एज आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि एकेडमिक्स का गैप
और ये एकेडमिक्स का गैप शायद आगे जाके साइकोलॉजिकली बच्चों को ट्रॉमेटाइज कर सकता है हाँ, कि मैं काफी हद तक अग्री करता हूँ आपकी बात से कि जो बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है एक पैन इंडिया एग्जाम देने का, especially of the kind of exam that board class 10 board is. I mean, it's a talking point of all relatives the day the results are out. Everyone is like ringing and finding how much your kid scored and everything. So that kind of peer pressure, pressure of relatives and pressure of teachers, if the kids are able to face that, obviously they become more confident. And obviously there is a gap of academics, because I believe there is a culture in this country as far as education is concerned that kids are more focused towards the exam. So obviously that intensity that's during the exam, that edge that students could have taken in academics, that is lost. What do you think, Adarsh? What is your opinion? And I would like to add that all those viewers who are with us live, many viewers connected with us, they are putting up the questions and points. They can just put up in the comments if you want to ask the kids or you want to ask the experts on this page. And there's one applause for the option thing. One of the readers, Nadeem Akhtar Khan, he has said that the option thing is convincing. Gargi, you have got an applause that this option thing is good, and kids could have been given an option, those who want to appear and those who do not want to appear. So I would like to go to Adarsh. We are discussing impact. Adarsh, what do you think can be the impact on you? So impact can be the lack of to know how can we appear in boards, how much potential we have, and how much we can express it. Moreover, I think the more impacts are negative from the negative side. Positive impacts are in comparison are low, and negative impacts are more like So you want to say that the more aspects are negative. Srishti, you have been a campaigner of cancellation of the board exams and you seem to be pretty happy with the decision. So what do you think? So, Think that of the course, impacts are negative. Sir, of course, every decision has its pros and cons. And so I believe that the biggest impact of this decision is that we are alive. Because somewhere or the other, if we would have given the examination, there would have been a chances of a corona blast. हम ही पीक पर ले जाते हैं और आई बिलीव दिस तो सर कम से कम अच्छी बात और बेस्ट बात ये है कि हम जिंदा हैं सर दूसरी बात काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि 2-3 लाख लोग तो रैलियों में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव। हाँ सर दैट इज अ पॉइंट। 12-13 लाख कैंडिडेट्स हैं वहां पे। कुंभ मेला में एक दिन में 35 लाख लोगों ने स्नान किया है। तो ये भी तो एक पॉइंट है, उनसे कोरोना नहीं फैल रहा है, जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनसे कोरोना फैल जाता। सर एक्चुअली ये कहीं ना कहीं है कि मतलब गवर्नमेंट ने ये जो कैंसिलेशन लिया है तो ये ह्यूमैनिटी को सोचकर लिया है कि जान बचानी है। एंड सर उसके अलावा कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है आई मीन जो कुंभ मेला हो रहा है उसको हम पोस्टपोन कर सकते थे। अभी सरकार को जो ये करना चाहिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो इंटरफेयर कर रहा हूँ आपको। मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी के शो पे आप फ्यूचर में बहुत अच्छे डिबेटर हो सकते हैं, बट आई एम इंटरप्टिंग यू एंड आई वांट टू से समथिंग कि इम्पैक्ट जो ये कह रहे हैं कि नेगेटिव हो रहा है, तो वो आपका इनका ओवरऑल कहना है आदर्श का साफ साफ कि इम्पैक्ट सिर्फ नेगेटिव ही है। कैन यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट? क्योंकि देखिए ये जो डिस्कशन है बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है कि कोरोना जो है वो अभी 18 साल का नहीं हुआ है, वो सिर्फ स्कूल कॉलेज में जाता है, ठीक है, वो रैलियों में नहीं जाता है, वो चुनाव में नहीं जाता है। तो काफी लोग का कहना है कि कोरोना जो है वो सिर्फ बच्चों को हो सकता है, ऐसा एक धारणा बना ली गई, इसलिए स्कूल कॉलेज भी बंद है, बाकी सब कुछ चल रहा है, सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद है, एग्जाम्स भी कैंसिल हो रहे हैं। सो कैन यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस? सर पॉलिटिकल एंगल में ना जाते हुए इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू एंड स्टूडेंट्स। सर मुझे ऐसा मतलब अब पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं है खैर इसमें ज्यादा कुछ। एक हम लोगों को सबको जब प्रेशर होता है किसी चीज का तो हम सबको प्रेशर लेना पसंद थोड़ी ना करता है। वी ऑल जस्ट ट्राई टू मूव आवर हैंड्स बैक कि हमें प्रेशर लेना पड़े। तो बच्चे खुश इस वजह से भी है। एक मेरा भी रीजन, बहुत सारे जो खुश है उनका ये भी रीजन है ना कि आप आओ हमें एग्जाम देना पड़ेगा, रिजल्ट की टेंशन नहीं है, रिश्तेदार नहीं सुनाएंगे, मम्मी पापा नहीं सुनाएंगे किसी पे कमाने पे। सर वो एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा चीज लग सकता है, बट ऑफकोर्स सर जो रेपुटेशन है हमारे कंट्री में बोर्ड्स का और उससे
उससे भी ज्यादा एक हमारी जो प्रिपरेशन हो जाती क्लास 12th के लिए आगे ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन के लिए, वो तो नहीं है। बट सर ऑप्टिमिस्टिक होना ही सिचुएशन का है, क्योंकि अब जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक रहकर अब आगे का सोचना इज द बेटर ऑप्शन। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है। नक्षत्र, आपका क्या कहना है? आप भी इसमें एग्री करते हैं कि कैंसिल जो हुआ एग्जाम उसका एज ए स्टूडेंट आपके ऊपर, आपको क्या लगता है लॉन्गर रन में पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट? सर पॉजिटिव भी है। अगर मुझे स्ट्रीम चूज करनी है आर्ट साइड, अगर मेरे मैथ्स में ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, बायो साइंस में आते हैं, तो पेरेंट्स फोर्स करेंगे साइंस लेने के लिए। अब बच्चे अपनी मर्जी से स्ट्रीम चूज कर सकता है, मार्क्स ही नहीं आए तो पेरेंट्स कहाँ से? एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू नक्षत्र ने बताया है कि ये एक टेंडेंसी है इस कंट्री में, और मैं भी इसका विक्टिम रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी जब बोर्ड एग्जाम्स दिए थे क्लास 10th में, तो मेरे सबसे कम खराब मार्क्स जो है हिंदी में थे, 83 मार्क्स। और मैं एक्चुअली एक पोएट और एक ऑथर बनना चाहता था, लेकिन चूंकि मेरे मैथ्स में 97 मार्क्स थे, इसलिए सब ने फोर्स किया कि नहीं नहीं ये तो IIT मटेरियल है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बताया, एक अलग एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताया नक्षत्र ने। मान्या, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कुछ है या सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं? The positive impact lies to parents who are a little orthodox and who believe that marks matter in choosing the stream. So yes, for certainly most kids, for some kids, it has been good that they do not have to worry about parent pressure anymore. But as we see, it has more cons than pros. But most certainly, our lives matter more. So the decision has been taken rightly, and now we have time to focus on our class 11th and see what we need to do ahead. True. Masharib, you had been on and off in between. So are you attending another live session also? No, sir, I'm not. Okay. So I would like to ask you ki, the impact as a student, what do you think the impact on you short term and long term? So actually, short term, I think. Stream choose करना और इस सारे एस्पेक्ट्स से आपको क्या लगता है? मेरी स्ट्रीम डिसाइडेड है सर। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे मैथ्स में कम आते या हिंदी में कम आते। एक्चुअली मेरे हिंदी में कम आते हैं एक्चुअली। तो मैथ्स में अगर मेरे कम भी आते तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय फ्यूचर। सो मैं वही डिसाइड करता हूँ जो मैं पहले डिसाइड कर चुका हूँ, तो मैं वही लूंगा जो मुझे लेना है। आई एम गोइंग टू टेक PCM, तो दैट्स डिसाइडेड। इट डजंट मैटर मेरे मार्क्स कम आए या नहीं आए हैं, जो मुझे जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट होगा मैं वही लूंगा। एक पॉइंट मशारे बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्क्स से, क्योंकि स्ट्रीम चूज करने वाली बात जो है उसमें मैं चाहूंगा कि वो वोटिंग हो जाए। हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज का ऑप्शन है इसमें जूम में। तो कितने स्टूडेंट्स एग्री करते हैं कि क्लास 10th का जो रिजल्ट आता उससे उन्हें डिसीजन लेने में आसानी होती है कि उन्हें कौन सा स्ट्रीम चूज करना है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? Nobody. I mean, everyone thinks that. Okay, others says no. So you have an option. You can just say yes or no. Anyone would like to add on this that marks helping to choose the stream? सर हम लोग 8th 7th 8th में ये डिसाइड कर लेते हैं। कहना चाह रहे हैं। हाँ, हम लोग ये 6th 7th 8th में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्विस में जाना है। तो मार्क्स का क्या डिपेंड करेंगे सर? वो तो हमारी इंटरेस्ट है कहाँ जाना है। गार्गी, सर मैं कह रही थी कि ऐसा होता है कि मतलब जैसे हम में से कुछ लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन्हें अपने इंटरेस्ट पता होते हैं, तो हम लोगों का डिसाइडेड होता है कि हम लोगों को क्या चूज करना है, या फिर हम उसके बाद टाइम निकाल लेते हैं चूज करने के लिए। पर कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट, तो कई बार पढ़ते पढ़ते या फिर हो सकता है किसी में मार्क्स अच्छे आ गए तो उससे उन्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, जिससे हो सकता है उन्हें स्ट्रीम चूज करने में आसानी हो। हाँ, मतलब एक एस्पेक्ट ये भी है अंकिता और जो गार्गी कह रही थी कि स्ट्रीम चूज करने में कुछ बच्चे जो बिल्कुल श्योर नहीं है, अनसर्टेन है, उनके लिए जो उनकी परफॉर्मेंस है या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स they get an idea which subject they are able to do well. Do you agree? So it can help them. However, it can definitely help and boost the confidence. However, as I would agree with most of the students, like कि पूरी तरह से marks parameter नहीं होने चाहिए कभी भी। मैं सभी बच्चों को यही कहूंगी कि marks जो हैं वो आप नहीं हैं, आप marks से ज्यादा हैं, उससे बढ़कर हैं। तो आपको हेल्प मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है दिस इज व्हाट आई एम मेड अप फॉर, इफ यू आर नोन विद दैट थिंग, तो गो फॉर दैट।
इवन इफ यू गेट लेसर मार्क्स, है ना? जैसे सर पोएट बनना चाहते थे, तो मुझे लगता है सर को पोएट बनना चाहिए था, साथ में इंजीनियरिंग भी कर लेते। नहीं, वो मैं अभी भी टाइम निकाल के करता रहता हूँ बीच बीच में। तो जैसे सर मतलब अगर एक पोएट हमारे साथ हिंदी पोएट है तो एक कविता हो जानी चाहिए। नहीं, मैंने कल ही लिखा है, वो लाइन काफी लोगों ने शेयर भी की है ओके कि सर। न जाने कितने समा जाएंगे काल के गाल में, जिनके भरोसे थे सब वो लगे हैं बंगाल में। अरे वाह 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 वाह। तो मुझे लगता है कि हमारा Well said, इंटरेस्ट sir. वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं बाकी स्टूडेंट से चाहूंगा कि एक बार वो चीज़ों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और एक बार फाइनल यस नो बटन जो है वो दबाएं। आपके पास यस और नो का बटन है कि क्लास 11th में क्या स्ट्रीम डिसाइड करना है, ये मार्क्स से डिसाइड होना चाहिए या नहीं, यस और नो। व्हाट इज योर फाइनल ओपिनियन? ओके, देयर आर 3 नोज ऑन द स्क्रीन, there are 4 no's. Okay, so everyone saying no, so it should be based on interest. That is a unanimous opinion. Okay, so there is very clear conclusion from everyone that you should take. So from this point of view, Ankita ma'am, we can very clearly conclude कि class 10 board exam के result से जो कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे डिसाइड कर पाते, वो तो क्लोज चैप्टर है, उसका कोई लिंक नहीं है, उससे लिंक रखना भी नहीं चाहिए। ओके, जी सर। so we move ahead that the impact, the conclusion of impact part is that yes, the impact is there, impact will be there, and it is negative because kids didn't get the exposure that they could have got. So moving to the next part of this seminar, this session, and I would encourage all the people who are live with us to put up their question in the comment section. And next part is that what is the way ahead, अब आगे क्या करें, क्योंकि देखिए डिसीजन जो था वो तो आ गया है, कोरोना की सिचुएशन ऐसी है, अभी तो कुछ टाइम तक क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी और बच्चे, काफी सारे बच्चे जो शॉक में हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी शॉक में हैं, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वन लाइनर मैसेज क्या होगा सृष्टि आपका? सब अकॉर्डिंग टू मी जो हो गया, वी कैन नॉट जस्ट कीप फसिंग अबाउट ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, और बेटर हो सकता था, नहीं हो सकता था, हो गया जो हो गया। सब मेरे हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक बनना ही अच्छा है। अभी ये जो टाइम है जिसमें हमारी 11th शुरू नहीं हुई है, ये गोल्डन पीरियड है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आप अभी भी क्लियर नहीं है अपने स्ट्रीम को लेकर, आप सोचिए, आप अपने प्री बोर्ड्स के एग्जाम कैलकुलेट करिए, आपको क्या लगा उसमें, आपको क्या क्लिक करता है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। और अगर अभी भी आप मार्क्स की वजह से, मतलब अगर आपको मार्क्स होल्ड कर रहे हैं कि हम बोर्ड्स में मार्क्स देते, तो आप अभी भी सैम्पल पेपर्स लगा के देख लीजिए कि अब आपको क्या लगता है आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। और सर अब मेरे हिसाब से, क्योंकि आज से 10 साल के बाद कोई हमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारे 10th में कितना परसेंटेज आई थी, 12th में कितने परसेंटेज आई थी। इनफैक्ट 12th में भी एंट्रेंस ही ज्यादा मैटर करती है, आप कौन से ड्रीम कॉलेज में, आपको जो कॉलेज चाहिए, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, आप उसमें गए कि नहीं गए, वो मैटर करेगा, वो आपकी खुद की सोल को मैटर करेगा। I agree. She put up a very strong point, Srishti. I really thank you for putting up that point. Ki 10 years down, nobody is going to ask you class 10 board exam marks, and definitely students should take the long-term view of their academics, because I know cases who scored very low. Chetan Bhagat, when he came to Muradabad for the session here, he told me and told the audience that he scored very low as 76% class 10 board exam, and still he is such a big celebrity. He competed in the competition, the very tough competition of IIT JEE. He was successful, and he is a successful author also. He's a big celebrity. There are many cases. So Srishti is right. Anyone who differs from that, because she says very clearly that it doesn't matter. Anyone who feels that it matters, class 10 board exam marks. Ankita ma'am, Amanya wants to say something. So class 10 board exams do not matter, but I'm pretty sure that they would have mentally prepared us for the future competitions. As Srishti said, class 10 doesn't matter, but our entrances do. So basically, board exam was our first step into the competitive world, which we did not get to take. So it will certainly be tolling further on our mental health when we will start to appear for exams which actually do matter. So in the long run, it is tolling on us. But yeah, 10 years down, nobody's going to ask us how much we scored in class 10. So we mustn't linger on it. There's a very important thing coming out of this live session from the kids, that actually the kids also know this very much. They agree that the marks do not matter, but they are focusing on the experience that they would have got from the exams, and that's very important point. So now
the way ahead is that we have to replace that experience with something so that you are prepared in time for your important exams in that you will encounter in class 12, because 10th could have been like a semi-final to that, some sort of experience. So how can we move ahead? Ankita ma'am, please guide the students. How, I think, sir, you are an expert in this. Though I'm not an expert, I would just suggest that, like, when we all are supposed to move ahead as the students now, students of class 11. So you have to first of all sort out any kind of doubts, that self doubts when it comes. So first of all, clear your self doubts. First of all, give yourself due time rather than just popping into the thing. Give yourself due time, not only to check for the stream you are going for, but also to that what is your long term vision, where actually you want to reach in. Just as sir is saying that next 5 years, in next 4 to 5 years, where I wanted to be, what I wanted to be, where I wanted to see myself doing this, right? So if you start from there, that I want to be there in next 5 years, so it will be really helpful for you to decide now that what I look for. So because after the choosing of the stream, then you have to go for the related exams, preparation of those competitive exams, that you need to decide and that you need to check. So give yourself due time in order to see and foresee that what you wanted, where you wanted to see yourself in your future. And thanks for that, ma'am, your opinion. I am receiving some comments also, like there's Mr. Chaitanya Pratap Singh Jadau. What he's saying that students will definitely get late in joining college, especially college life experience, which is essential, will be delayed. So this will cause them more frustration. For more information, you can contact any first year student who is still not joined college. So, and there is one Miss Shashi Prabha. She says that positive impact is that academic cycle is restored of class 11 as before. So this is one important point that has come up, that earlier class session starts from April, but had the exams been delayed or not cancelled, the session would have started from June. And kids, when they were going to class 12, they would have got less time compared to normal students. So this is the positive impact that has come. So what is the way ahead? Now we were focusing on that. So I would like to go to Adarsh. What is the way ahead, Adarsh? कैसे अब आगे बढ़ें? What should be the ideal course of action? सर आई थिंक सर जो हो गया सर वो हो गया, और सर अब 11th की सब प्रिपरेशन करनी चाहिए, और सर मिनिमाइज कर देना चाहिए सर 10th के बारे में सोचना, क्योंकि अब वो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और ये ट्राई करना कि हम 12th में. There is no undo button, unfortunately. Sorry sir, there is no undo button actually, so we have to just move Yes, ahead. sir. I am just adding to your point. Yes, please. You were saying something? and sir I think we should made our mind to score better in 12th boards. So That's we all. should, according to you, we should focus now on class 12 boards and start preparing for class 11. And have you started? Have you already started? Yes sir, I started for class 11th. मैंने कुछ books अभी start करी हैं, और See, आदर्श so वॉइस कट रही. आदर्श, That's okay. आपने शुरू कर दिया पढ़ाई, तो आपने कितने दिन का ब्रेक लिया? मेरे ख्याल से न्यूज़ शायद वेडनेसडे को आया था. सर मैंने सर 1 या 2 दिन का ब्रेक लिया, उसके बाद अपना माइंडसेट मैंने बनाया कि हाँ अब मुझे आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, सो अब मैं थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा हूँ 11th. ओके. और मशारेब, आपका क्या कहना है? आपने शुरू किया है अभी या अभी सोच रहे हैं? So honestly अभी नहीं करा, actually मैं अब शुरू करूँगा. Yes, I am making up my mind and it's completely done, so I'll start. Yeah. So what do you think that the way ahead is? Move ahead, and how to compensate that experience that we have lost? So there's no compensation. You just have to move on. It's happened and stop thinking about it. Yeah. नहीं, क्लास 11 12th में जब हम 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो बच्चों ने सबने एग्री किया कि जो एक्सपीरियंस एक मिस कर गए हैं, कॉम्पिटिटिवनेस का जो Yes, हमको sir. एज मिलता, उसको हम कैसे कर सकते हैं कवर अप 11 12th में? We have to do some competitive exams, like there are some
we have to do. Yes sir, लॉस तो हुआ है कि हमारा एग्जाम देने का एक्सपीरियंस नहीं मिला, क्योंकि 10th एक पहला स्टेप होता है एक्चुअली इस टाइप के एग्जाम्स के लिए, सो उसका लॉस तो हुआ है। हाँ, या एग्री विद दैट। नक्षत्र, क्या कहना है आपका कि वो जो एक लॉस हुआ है उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं? अब तो सबने डिसाइड कर लिया है कि हमें आगे मूव करना है, और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू भी कर दिया है, क्लास 11th पढ़ाई भी शुरू कर दी है। तो हाउ डू यू थिंक दैट वी कैन मूव अहेड? इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं देगा, उससे कंपटीशन का पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके, सृष्टि कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? सर मेरे हिसाब से जैसे कि एनटीएससी होता, मतलब एनटीएससी तो 10th में होता था, उस तरीके से सब बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, केवीपीवाई भी होता है। ऑफ कोर्स केवीपीवाई से आपका कॉलेज तो डिसाइड नहीं हो जाता है, तो केवीपीवाई दे दीजिए, तो उससे, या फिर और भी 11th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको देकर देखिए, उससे आपको कॉलेज तो डिसाइड नहीं होगा, बट एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया वेयर डू यू स्टैंड अमंग द यूथ ऑफ द इंडिया। और सर उसके अलावा मेरे हिसाब से एग्जाम पे एग्जाम होता है, वो तो हमने एक इंडिया में बना दिया है 10th और बोर्ड का कि ये बोर्ड होता है, वरना एग्जाम तो 9th में भी लिया जाता है, 8th में भी लिया जाता है, 11th में भी लिया जाता है। तो अगर हमें सीरियसली से कंपनसेट करना है तो जितनी सीरियसनेस से हम एक बोर्ड ईयर को लेते हैं कि हमें 10th पढ़नी है क्योंकि ये काम आएगा, ये मार्कशीट काम आएगी सर, लेकिन अब तो 0 सेशन ही है, अब जो 98 लाएगा वो भी सेम है, 92 लाएगा वो भी सेम है। अब इस ऑल नाउ आप कैसे परफॉर्म करोगे अपने इंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, अपने रियल एग्जामिनेशन पे? तो सर मेरे हिसाब से एग्जाम है, आप 11th को सीरियसली लेकर, जिस तरीके से आप 10th का आपने बना रखा था, आप 11th को सीरियसली लेकर 11th करना शुरू करिए, 11th में पूरी सिंसियरिटी लगाइए, तो उस तरीके से भी कॉम्पनसेट हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे सृष्टि का, कि हम क्लास 11th के जो एग्जाम्स हैं उन्हीं को क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम्स मान के अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट appearing in the exam experience. So exam experience तो can be replaced by the 11th exam also. गार्गी, कुछ कहना है आपका इस बारे में? ये कैसा लगा आपको आइडिया? सर मतलब मैं ये नहीं कहूँगी आइडिया बुरा नहीं है, बट बस बोर्ड की सर हमारे देश में ये बात एक्चुअली कि लोग सिर्फ बोर्ड ईयर को सीरियसली लेते हैं कुछ लोग, और साल में ऐसे ही करते हैं कि काम चला लेंगे, हो जाएगा। पर सब बोर्ड का भी पर्क होता है, बोर्ड हैज इट ओन पर्क कि आप एक ऑल इंडिया लेवल पे ऑल थ्रू आउट द कंट्री बच्चे बोर्ड देते हैं, आपको कंट्री लेवल पे आपको पता चलता है कि मैं आई स्टैंड हियर, और बच्चे को एक बूस्ट मिलता है ना कि मैंने इतना अच्छा करा, मैं यहाँ हूँ। मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? बच्चों का जो ओपिनियन है ओवरऑल वो ये है कि हम आगे बढ़ते हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और क्लास 11th में भी हम उसी इंटेंसिटी से अगर कंटिन्यू करें कि जैसे बोर्ड ईयर ही है, तो शायद कोई लॉस नहीं होगा ओवरऑल। सर क्लास 10 से तो मूव ऑन करना ही चाहिए बच्चों को, एक बहुत पॉजिटिव सोच है यहाँ, ज्यादातर बच्चे जो ये सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है। दिस इज आई थिंक लाइक शायद मैं इतनी पॉजिटिव होती, इतनी मच्योर होती, दिस आई एम सीइंग लाइक कि दीज यंग चिल्ड्रन दे आर क्वाइट मच्योर एज कंपेयर टू वी एज द चिल्ड्रन। और आगे क्लास 11th को बोर्ड की तरह लेना, ये मतलब बिल्कुल कंपेयर तो नहीं कर सकती है हाउएवर, लेकिन हाँ यू कैन सेट द मार्क्स, बेंच मार्क्स कि ठीक है मेरे क्लास 11th में, ठीक है मैं क्लास 10th में नहीं कर पाया, तो शायद एक जो साइकिक लेवल पे आपको जो फिल इन करना है गैप, तो आप ये कर सकते हो अपने लिए, हाँ पर्सनल लेवल पर। इट में वर्क एज अ ट्रिक। तो ये ट्रिक होता है कि हम अपने आप को कैसे बूस्ट करें। तो कहीं पर अगर हमारा कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है, लेट्स से लाइक ओके मैं ये नहीं कर पाया, तो लेट्स शिफ्ट टू दिस, शिफ्ट माय फोकस टू 11th। इट्स अ गुड way of going. I found it a very interesting idea, ma'am, because see, this is a positive outcome of this session, that let's say that 10th exam is not there, then board exam didn't happen. So what actually I find kids, I hope you would agree, कि बच्चे बोर्ड एग्जाम, यही बात गार्गी भी कह रही थी कि बच्चे बोर्ड एग्जाम या एग्जाम सेंट्रिक ज्यादा हैं, तो एग्जाम जब होता है तो बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत एनर्जी, और फिर कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो 2-3 महीने ब्रेक लेते हैं। मैं देखता हूँ जनरली अप्रैल, अगर मार्च में बोर्ड एग्जाम खत्म होते थे तो अप्रैल महीने 2 महीने जितने रिलेटिव्स हैं, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, जहाँ जहाँ रिसेंट टाइम में नहीं घूमे हैं, पहले सब जगह घूम लेंगे, मामा जी से मिल लेंगे, तब 2 महीने बाद पढ़ाई करेंगे। इतना एग्जॉस्ट हो जाते थे बच्चे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नहीं हो के अब क्या है, बच्चे चूंकि एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं तो फुल एनर्जी से क्लास 11-12 में पढ़ाई करेंगे, ऐसा सोच के कि अब बोर्ड एग्जाम की जो भी मेहनत थी हम यहीं पे करेंगे। Do you want to say something, Manya? Yes. So I think instead of trying to compensate the loss of class 10th,
we must make sure that the decision we have taken as far as stream is concerned is right. We must start taking classes for whatever subjects we have chosen so that we don't make a mistake like some others do. So we have this golden period where we can try out different subjects and make sure that we are happy with what we are taking. Because generally people have to take this decision in a hurry, and we've seen people changing streams in class 11th. So that must not happen with us, because we have this amazing 1 month where we can think about it, we can try out different subjects and make sure that our decision is right. That's very positive, that the things coming out of this session. Anyone who wants to add anything, you can just raise your hand. You have a raise your hand button, and I am just constantly checking. There are some comments and there's some questions. Yes, Adarsh, you want to add something? Sir, I want to add some that sir, जब 10th में सर अगर कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो सर वे अपने आप में जरा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से सर वो 11th में इतना अच्छे स्कोर नहीं कर पाते जितना वो कर सकते हैं. लेकिन अब इस टाइम पे क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो अब हमारे पास हमारे अंदर वो एक फायर है कि हम हमारे मन में ये है कि हम 11th में 10th से अच्छा स्कोर करें. तो बहुत पॉजिटिव चीजें जो हमने कभी सोची नहीं थी अंकिता मैम, आपने भी शायद नहीं सोची होंगी. एंड वेरी न्यू पर्सपेक्टिव आई एम गेटिंग कि एक्चुअली क्लास 10th के बाद मैंने भी ऑब्जर्व किया एज अ टीचर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 99% आ जाते हैं, 98% आ जाता है अनएक्सपेक्टेडली. and I to some extent believe that obviously the board method of checking या analyzing the intelligence or the abilities of a kid through board exams is not very fair. So what he is rightly said कि कुछ बच्चों के unexpectedly के 98-99% आ जाते हैं, तो वो शायद 5-6 महीने तो जमीन से 2 फुट ऊपर ही रहते हैं. तो वो 6-7 महीने बाद वो जमीन पे आते हैं, तब तक क्लास 11 काफी निकल गया रहता है. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है. क्या कहना है मैम आपका इस बारे में? सब बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया तरीका है. मतलब मैं देख रही हूँ बच्चे कितना कुछ सिखा रहे हैं, तो मेरे लिए लर्निंग सेशन चल रहा है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है इन द सेंस कि यहाँ जब बच्चे खड़े होकर बात कर रहे हैं और दे आर इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम देयर हार्ट, राइट. तो व्हेन इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम देयर हार्ट, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव देख के शायद इतना कुछ समझने को सीखने को मिल रहा है जो जनरली क्लासरूम में नहीं मिलता एज अ टीचर. तो आज थैंक यू सो मच एवरीवन कि आज काफी कुछ सीखा बच्चों से. बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है आपको. वेरी गुड. I mean, this is the normal thing, ma'am. The way the education system go on is like kids learn from teachers, and they also give us back something, and we also learn from kids. And that is what most of the students have found the difference between Indian education system and Western education system in Europe or US. That kids also throw us challenges to us, and we have to face that, accept that they are also source of knowledge, and I mean just adding up the value to whatever understanding we have. I would like to go over to मशारिब, आपको क्या लगता है ये जो आइडिया है उससे आप कितना सहमत हैं कि भाई क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है, तो अब जो बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आते हैं, ठीक है, अब 90% भी फिगर आपको पता है आ जाता है इजिली, 92-93%, तो उसके बाद तो फिर आईफोन से नीचे की तो डिमांड होती नहीं है सर. ये मुझे मेरी डिमांड थी सर ये. अच्छा, पर एक अब कभी नहीं हो पाए. कितने परसेंट डील कितने परसेंट की हुई थी बता दो, बता दिया है तो. डील तो सर 95 की हुई थी, लेकिन सर 90 भी आ जाते तो मिल जाता. लेकिन अब आईफोन था, आईपैड क्या था? तो मुझे फोन ही मिल जाता सर. मेरा खुद का फोन नहीं है. अच्छा, उसमें अलग अलग ग्रेडेशन नहीं थी कि 92 पे ये वाला फोन मिलेगा, 93 पे ये वाला, 95 पे आईफोन, ऐसा कुछ डील नहीं हुआ था, डिटेल में नहीं हुआ. नहीं सर, इन चीजों से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. फोन होता है. अगर सर आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट हियर सर कि ये सर आप मशारिफ को जो ये समझा रहे हैं, तो दिस इज गोइंग कि बेटा अलग-अलग परसेंटेज पर अलग-अलग वेरिएशंस हो सर. मुझे लगता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के लिए जनरली घरों में ऐसे डील होती है. बच्चे इंसिस्ट करते हैं कि मुझे बाइक चाहिए, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है बेटा बाइक दिला देंगे, 97% ले आओ. अच्छा, वो भी एक ऐसी परसेंटेज बोलते हैं जो उन्हें लगता था उनके टाइम के हिसाब से बहुत इम्पॉसिबल था. तो वो सोचते थे कि हमारे टाइम में तो 90% आते नहीं थे, तो वो बोल देते चल 95 ले आ. अब उन्हें पता ही नहीं कि उनका बच्चा 95 ले ही आएगा, तो वो जानबूझ के ऐसा इम्पॉसिबल फिगर बोलते हैं जो आएगा नहीं, बच जाएंगे, लेकिन बच्चे ले आते हैं, फिर देना भी पड़ता है. तो इसलिए मुझे लगता है कि डील्स पूरी डिटेल में होनी चाहिए बच्चों की. सृष्टि भी कुछ कहना चाह रही है, ऐसी कुछ डील सृष्टि के यहाँ भी हुई थी शायद.
यस सर, अब ऑफ कोर्स सभी क्या ऐसा कुछ कुछ होता रहता है। मेरा था दैट अगर मेरे 96 आ जाता है, 96 97, तो मुझे ऊटी घुमाएंगे, बट अभी तो सिचुएशन देख के मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मतलब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि पेरेंट्स का काफी सारा पैसा बचा है बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने से। दिस इज ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स ऑन पेरेंट्स पॉकेट्स, that a lot of deals that were there with the kids have been cancelled by government of India. Manya, would you like to add something? Some similar deals were there? So no such deal was there, but certainly there was a fire inside us to prove ourselves, to stand up to the expectations of our parents. So that was something which could not take place, but no such deal was there. It was just the expectations that I wanted to meet. Oh, that's great. So definitely that is also a very big thing, that kids visualize that, kids always visualize, and that inspires them, that motivates them कि पेपर में फोटो आएगी हमारी, वो मिठाई खिलाते हुए जनरली आती है और पेरेंट्स दोनों बैठे होते हैं, मम्मी पापा इधर, ठीक है, और जस्ट मिठाई हल्की सी टच कराई जाती है फोटो में, ठीक है, और एकदम पिक आ जाती है और इंटरव्यू वगैरह आता है। तो वो सारा जो अपॉर्चुनिटी है या पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का, देखिए पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। मैं अक्सर पेरेंट्स से कहता हूँ कि बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए। बच्चे हर समय ये सोचते हैं कि कौन सा मौका मिले आपको प्राउड फील कराएं, तो you should handle them lightly. You can very clearly hear that everyone is disappointed from this aspect also, that they were not given the opportunity to make you proud of them. गार्गी, ऐसा कुछ विजुअलाइजेशन आपका भी रहा होगा, कोई ऐसी डिसअपॉइंटमेंट आपकी भी? सर मेरे यहाँ डील्स तो नहीं हुई थी, यहाँ पर सर ऐसा सही था कि वो मतलब न्यूज़पेपर में फोटो वाली चीज ना मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती थी हमेशा से, कि उसकी वजह से आप काफी मेहनत कर रही थी, काफी हार्ड वर्क कर रही थी। यस सर, कितने तब घंटे वो पढ़ती पब थी? था एक। कितने घंटे पढ़ रही थी डेली? 8 से 10 8 से 10 घंटे। जिस दिन बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने का रिजल्ट आया उसके बाद से कितने घंटे पढ़ाई चल रही है? सर तब से चली नहीं है, तब से मैं अभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रहा है, मेनली सोचने का कि मुझे अभी आगे क्या करना है, उसके बाद स्टार्ट होगा। तो आपको क्या लगता है आगे बढ़ने का रास्ता अब क्या है? कुछ ब्रेक लें 10-12 दिन का, या सर कुछ? अगर ब्रेक रिक्वायर्ड है एक्चुअली में, कि आपको लगता है कि आपका सर मतलब बहुत भरा पड़ा है, तो फिर टू क्लियर योर हेड यू शुड टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड मतलब ये सोचने के लिए कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं। डोंट यू थिंक कि अगर आप ब्रेक ले रहे हो लंबा तो मोमेंटम लूज हो जाएगा? क्योंकि अभी क्या आप खुद बोल रहे हो कि 8-10 घंटा हम रोज पढ़ रहे थे और अब पढ़ाई का शेड्यूल 0 का हो गया है, तो वो तो पूरा मोमेंटम लूज हो जाएगा और वापस से उतनी सिटिंग। अच्छा, जस्ट 3 मंथ्स बैक गार्गी, आप सोचो 3 महीने पहले भी आप 8-10 घंटे की सिटिंग लगाते थे जितनी अभी लगा रहे थे रिसेंटली। हाँ बाकी लोग एग्री करते हैं? यस नो जस्ट करके बताइएगा मुझे। क्या आपको नहीं लगता है कि बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले आपकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ी थी, सेटिंग बढ़ी थी? यस नो करके बताइएगा। यस, ओके, 3 यस फ्रॉम देयर 2 नोज, सो जस्ट 50-50 सिचुएशन। तो गार्गी, आपको क्या लगता है कि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है ज्यादा अगर हम 10-12 दिन का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस हम उसी इंटेंसिटी शुरू कर सकते हैं? सर अगर आप पे ऐसा कोई पर्पस हो या फिर आपका जो गोल है वो आपको पता हो, क्लियर हो कि अब मुझे ये अचीव करना है, तो सर उसी इंटेंसिटी के साथ टाइम टेबल और वो सब फॉलो करके हो सकता है। पर जब तक आपको क्लियर ही नहीं है कि करना क्या है, तो तब तक ऐसे ही बस घूमते रहोगे, फिरते रहोगे, आपको कुछ क्लियरली काम होगा नहीं एक्चुअली क्वालिटी वर्क। तो गार्गी का ये कहना है, बाकी लोग भी अपना ओपिनियन दें, कि अभी ब्रेक लेना चाहिए बिल्कुल, जब तक क्लियर ना हो जाए कि आगे क्या करना है, देन वी शुड रिज्यूम। एंड देयर इज वन other point of view that you can lose the momentum. So I would like opinion from all. Anyone would like to add anything? Yes, Srishti. सर आई बिलीव दैट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे थे, आप कितने एग्जॉस्ट हो चुके हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 से 5 घंटे पढ़ती थी दिन में, सो मेरे लिए अभी भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जैसे अपनी 11th का थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया है, तो मुश्किल में 2-3 घंटा। तो डिपेंड्स कि आपको क्या लगता है कि आप कितने एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अगर आप अपने डिसीजन को क्लियर हो कि आपने डिसाइड कर लिया आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, तो दैट्स ओके। तो अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल आपको क्या लगता है, आप एग्जॉस्ट हुए हो तो ले लो ब्रेक, और ज्यादा लंबा नहीं, अदरवाइज यू लूज योर मोमेंटम। आप फिर दोबारा से उस तरीके से स्टार्ट नहीं कर पाओगे, वो फायर नहीं आएगी। तो अगर एग्जॉस्ट हुए हो तो टेक इट, एंड वो ब्रेक में आप यूटिलाइज करो टू अंडरस्टैंड ऑफ व्हाट योर स्ट्रीम शुड बी। आप अपना स्ट्रीम देखने की कोशिश करो, एंड इफ यू नॉट एग्जॉस्टेड
तो फिर आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, अगर आपको आपका एम है कि मुझे अब 11th ऐसा एकदम फाड़ के रख देना है, तो फिर अपने हिसाब से स्टार्ट कर लो टाइम उस हिसाब से। So according to you, it's not a fixed strategy for everyone. People should take a decision according to the situation that they are in. Okay, so moving, Manya wants to add something. So whenever we've all passed first class, second class, third class, so there's always a zero period after our final examinations after every class. So we are sort of used to of having those 15 days completely free where we don't have to study anything. So I think it's okay to take a break and to relax our mind and make sure that you start off 11th with full zest and zeal. So overall, coming to the conclusion part of this session, there are three aspects we have covered in today's session. First, that yes, it was a shocking news to everyone, and most of the people, they agree that obviously there was no alternative, so we must accept and move ahead. And in moving ahead, there is a point that you should take ample break, after which you are ready for the next journey, that is class 11, 12. And obviously, there is no need to be upset about what has happened, and there are more positives than negatives in the current situation. And one line final conclusion I would like to have from Nakshatra for today's session. What is the message to you? I mean, because after all this discussion, बहुत कुछ clarity जब हमें आई है, तो आप expect कर सकते हैं कि बहुत कुछ clarity जो बच्चे सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, उन्हें भी आई होगी. तो आपको क्या लगता है कि फाइनल अब आगे के लिए एक लाइन में कंक्लूजन क्या है? सर कि जो होना है अच्छे के लिए होना है, अब पीछे का छोड़ के हम अपना आगे का सोचना चाहिए. अब जो 10th में होना था वो हो गया, अब 11th के बारे में, अपने 12th और उससे आगे अपने कॉलेज के लिए सोचना चाहिए. Very good. Moving on to Gargi Gupta, one final line. If you are dedicated and passionate enough, anything is possible. So don't lose hope, and things will turn better eventually. Great message. Masharib, one final. Masharib, are you there? Yes, sir. We have to just got to move on and prepare for future. Prepare for future. Great lines. Srishti. सर जान है तो जान है, तो आई बिलीव कि अगर इफ यू आर अलाइव देन यू आर गोना डू एवरीथिंग यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर इफ यू आर डेडिकेटेड टू इट. अगर आप में स्किल्स हैं, पैशन है, तो फिर आप अभी 10th में नहीं दिखा पाए, नो प्रॉब्लम, आप 12th में आप अपने कॉलेज में जाकर दिखाएंगे सबको. Great lines. Adarsh. Sir, I just agree with Shrishti. सर अभी सर नहीं दिखा पाए तो सर 12th में और सर 12th के बाद भी सर बहुत सारी चीजें जिसमें अपना पैशन और अपना हार्डवर्क, अपना पोटेंशियल हम दिखा सकते हैं. तो अभी जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करो और सर जस्ट मूव फॉरवर्ड. ग्रेट. बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है स्टूडेंट से कि हमें आगे बढ़ना है और आगे के लिए फोकस्ड होना है. मान्या, वुड यू लाइक टू ऐड? So first of all, I request everybody to be thankful that you're alive, that you can listen to this session, that you're fit and fine. And secondly, we must all clear our heads and start off with a great energy. अंकिता मैम, बच्चों की इतनी मैच्योर बातें सुन के हमें लग रहा है कि हम एज अ टीचर, हम एज अ पेरेंट्स, हमें समझना चाहिए कि हमारी कंट्री का फ्यूचर बहुत सिक्योर है. बच्चे इस जनरेशन के बहुत मैच्योर हैं और हमें डेफिनेटली उन्हें खुल के, पंख खोल के उड़ने देना चाहिए. वो जो भी करना चाहें हम उनके लिए सपोर्ट देना चाहिए, उनके पीछे खड़े रहना चाहिए. क्या लगता है आपको इस सेशन सुनने के बाद, एज अ टीचर, एज अ मदर, बिकॉज योर किड इज ऑल्सो इन द सेशन, एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर एवरीवन. दैट सर मैं खैर सेशन के एंड पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगी आज कि आप मैं आई वुड लाइक एक्चुअली कन्वे फुल गुड बकेट ऑफ थैंक्स टू यू कि आपने आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया इन सब बच्चों को. आज जब ये डिस्कशन हो रहा था तो अभी तक सबके अंदर था बच्चों के, पर आज जब ये डिस्कशन हुआ, खुल के बात हुई, पूरी बात हुई, तो वो बात होने के बाद शायद वो जो अंदर मेंटल ट्रॉमा था, ये जो अंदर बहुत सारे सवाल थे, जवाब थे, जब डिस्कस कर रहे, आपने पूछे, एक दूसरे के साथ कुछ बातें हुई, कुछ हुआ, तो दैट हैज आई थिंक गिवन देम अ क्लैरिटी much better to see that what they are going to do next. I think it has given them that kind of hope that now, okay, fine, it's all done. Now let's take it up. As Nakshatra has said, like, जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो बहुत बढ़िया बेटा, you have taught us as teachers a lesson कि right, जो होता है अच्छे के लिए होता है. अभी जो हो गया है
वो हो गया है. But I would like each and everyone present over here to give sir a round of applause for arranging this platform for all of you to speak up your mind, speak your heart. This is one of the thing I would just give sir thumbs up. I would like to thank everyone for coming, and especially to Ankita ma'am for arranging such wonderful kids to interact with. I also gained a lot from all of you, and I would definitely like to tell the audience who is listening and who will be listening to it later on that amidst this gloom, amidst the negativity that is around, you see how positive these kids are, how ready they are to face their future in every circumstance. And we need to be inspired. We need to feel positive, though we are running away or we are escaping or we are afraid of positive people in this situation. But see the other aspect, that how positive these kids are. And the message is very clear, the conclusion from all these kids, कि खुश रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए, कोरोना से बच के रहिए. और एक शेर मुझे याद आ रहा है कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. तो इन बच्चों का बहुत क्लियर मैसेज है कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम सब कुछ नहीं है, इसके आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं. Let's move ahead, and that is the concluding words from this session. Thanks everyone for joining, and it was a wonderful session. We would like to have another session in coming days. Thanks everyone, Adarsh, Manya, Masharib, Gargi, Ankita ma'am, Nakshatra, everyone. It was a pleasure interacting with you. Thanks everyone. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Pleasure sir. here as well, Thank and you. thank you Thank you so everyone. much, sir. Thank you. Stay safe, Thank stay you, sir. positive, everyone.